عوام پر پیٹرول بم گرا دیا گیا ہے۔ اوگرا نے 1 روپے کی تجویز وزیر اعظم کو دی تھی، جبکہ انہوں نے 5 روپے لیٹر پیٹرول مہنگائے تو قیمت 5 روپے 92 پیسے اضافے کے ساتھ اطلاق کر دیا گیا ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات 12 بجے سے ہوگا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ عوام پر پیٹرول بم گرا دیا گیا ہے۔ چھٹی بار پیٹرول بم پھینک دیا۔ پیٹرول 123 روپے 30 پیسے فی لیٹر کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ اوگرا نے پیٹرول 1 روپیہ لیٹر مہنگا کرنے کی سفارش کی تھی، لیکن حکومت نے 2-3 نہیں اکٹھے 5 روپے بڑھا دیے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی 5 روپے 1 پیسہ اضافہ کیا گیا، جبکہ لائٹ ڈیزل آئل 5 روپے 92 پیسے اور مٹی کا تیل 5 روپے 42 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 120 روپے 4 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے، جبکہ مٹی کا تیل اب 92 روپے 26 پیسے اور لائٹ ڈیزل 90 روپے 69 پیسے میں ملے گا۔ 16 جون سے اب تک پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر 14 روپے 74 پیسے اضافہ ہو چکا، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل 9 روپے 28 پیسے مہنگا کیا گیا۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت 13 روپے 4 پیسے اور مٹی کے تیل کی قیمت 12 روپے 26 پیسے بڑھائی گئی ہے۔ عوام پر پیٹرول بم گرا دیا گیا۔ اوگرا نے 1 روپے کی تجویز دی تھی، وزیر اعظم نے 5 روپے پیٹرول مہنگا کر دیا ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 1 پیسہ اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 5 روپے 92 پیسے کی منظوری دی گئی ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات 12 بجے کے بعد کر دیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ عوام پر ایک اور پیٹرول بم گرا دیا گیا ہے۔ اوگرا کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان کو 1 روپے کی تجویز دی گئی تھی، مگر وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے 5 روپے کا پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ بات اگر کی جائے ڈیزل کی تو اس میں بھی 5 روپے 1 پیسہ فی لیٹر اضافہ ہوا ہے، اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں بھی 5 روپے 92 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ آج رات 12 بجے کے بعد ان قیمتوں کا اطلاق ہو جائے گا۔ حکومت نے مہنگائی پر پیٹرول چھڑک دیا ہے۔ 5 روپے 1 پیسہ فی لیٹر ڈیزل کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ پیٹرول کی اگر بات کی جائے تو 1-2 روپے نہیں بلکہ پورے 5 روپے 1 لیٹر پر بڑھا دیے گئے ہیں۔ عوام پر پیٹرول بم گرا دیا ہے۔ آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ اوگرا کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان کو پیٹرولیم کی قیمتوں کو بڑھانے کی تجاویز پیش کی گئی تھی، جس پر پیٹرول کو 1 روپے بڑھانے کی تجویز پیش کی گئی تھی، مگر وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے اس تجویز پر پیٹرول کی قیمت کو 5 روپے بڑھا دیا گیا ہے۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کے اطلاق کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ آج رات 12 بجے کے بعد نئی قیمتوں کا اطلاق ہو جائے گا، اور کل سے آپ کو پیٹرول 5 روپے فی لیٹر مہنگا ملے گا۔ نہ صرف یہ بلکہ ڈیزل بھی 5 روپے 1 پیسے مہنگا ہو گیا ہے، اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں منمانہ اضافہ ہوا ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید 18 پیسے مہنگا ہو گیا ہے۔ کاروبار کے دوران ڈالر 169 روپے 60 پیسے کی بلند ترین سطح تک آ چکا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی مداخلت پر قدر میں کمی کے بعد ڈالر 169 روپے 12 پیسے پر بند ہوا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ تجارتی خسارہ کم کرنے کے لیے پاکستان کو برآمدات میں اضافہ کرنا ہوگا۔ صنعت کار بھی ڈالر مہنگا ہونے سے خاصے پریشان ہیں۔ ڈالر کو روپے کے مزید کرارے پنچ، روپیہ تاریخ کی کم ترین سطح تک گر گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر نے نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ کاروبار کے دوران ڈالر 66 پیسے مہنگا ہو کے 169 روپے 60 پیسے کی نئی بلند ترین سطح پہ پہنچا تو ایکشن بھی ہو گیا، جس کے بعد انٹر بینک میں ڈالر 60 پیسے سستا ہو کر 169 روپے پر آ گیا۔ کاروبار کے اختتام پر ڈالر 18 پیسے کے اضافے سے 169 روپے 12 پیسے کی نئی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ معاشی ماہر مزمل اسلم کا کہنا ہے کہ 4 ماہ میں روپے کی قدر 11% گر چکی ہے، جس کی وجہ سے تجارتی خسارہ بڑھا ہے۔ ڈالر مہنگا ہونے سے تعمیراتی شعبہ اور دیگر سیکٹر بھی متاثر ہے۔ میں 2021 سے جو ہے یہ اب تک جو ہے تقریباً 11% جو ہے روپے کی قدر گر چکی ہے۔ یہ 11% کوئی تفریح میں نہیں گرائی، اس کے پیچھے کچھ اثرات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارا تجارتی خسارہ وہ بڑھا۔ اب تجارتی خسارہ 2 چیزوں سے بڑھا، ایک تو یہ کہ حجم بڑھا تجارت میں، اور دوسرا یہ کہ عالمی مارکیٹ میں اس وقت
آگ لگی ہوئی ہے ہر چیز پہ. مطلب ہر چیز کی قیمت ڈبل ہو گئی ہوئی ہے. اگر آپ خود نری تیل اٹھائیں, کھانے پینے کی چیزیں اٹھائیں, خام تیل اٹھائیں, لویا اٹھائیں, پلاسٹک اٹھائیں, پھر اس کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے جو مال بردار جہاز. $1,000 میں جو چائنا سے جہاز آتا تھا وہ $9,000 میں آ رہا ہے. صنعت کاروں کا کہنا ہے ڈالر کی قیمت میں تیزی سے اضافہ کاروبار کے لیے نقصان دہ ہے. ڈالر مہنگا ہونے سے درآمدی خام مال کی قیمت بڑھنے سے برآمدی صنعت بھی متاثر ہوگی. ہر روز یہ فلیکچویشن انسرٹینٹی جو ہے یہ بزنس کے لیے بہت ہارمفل ہوتی ہے. ہمارے انڈسٹری میں تقریباً 60% وہ چیزیں ہیں را مٹیریل جو امپورٹ ہوتا ہے, تو آٹومیٹیکلی اس کا فیکٹر اس کے اوپر پڑتا ہے جو ہماری پرائسز کو انکریز کر دیتا ہے, تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس انکریز ہو جاتی ہے. ایک ٹائم پہ ہم کاٹن گروئنگ ہم کر رہے تھے, اب امپورٹ کر رہے ہیں کاٹن, تو ڈیفینیٹلی پرائسز انکریز ہو رہی ہیں, لوکل پرائسنگ بھی انکریز ہو رہی ہے اور ہر چیز انکریز ہو رہی ہے. ماہرین کا کہنا ہے 4 ماہ میں ڈالر 17 روپے مہنگا سے پاکستان کے بیرونی قرضوں کے بوجھ میں 1900 ارب روپے کا اضافہ ہو چکا ہے. کیمرامین شوکت علی کے ہمراہ اشرف خان, سٹی 21. اور ڈالر سے اسٹاک مارکیٹ کے بروکرز بھی پریشان ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ڈالر کی قدر بڑھنے سے سرمایہ کار محتاط ہو جاتے ہیں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے تیسرے روز مثبت آغاز کے بعد منفی رجحان دیکھا گیا. اسٹاک بروکرز کا کہنا ہے ڈالر کی بڑھتی قدر کی وجہ سے مارکیٹ میں سرمایہ کار محتاط نظر آ رہے ہیں. یقیناً ایک یہ بہت زیادہ پریشان کن بات ہے, کیونکہ آج کی نیوز کے حساب سے اسٹیٹ بینک نے لاسٹ 3 months $1.2 بلین مارکیٹ میں انجیکٹ کیے ہیں. آلدو کہ گورنمنٹ کی پالیسی نہیں تھی کہ روپی کو بچانے کے لیے مارکیٹ میں پیسہ انجیکٹ کریں گے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ روپی سنبھلا نہیں ہے, اور آج ہم نے دیکھا کہ ایک نیا ہائی کیا 169.60 کا. دیکھیں ڈے بائی ڈے جو ڈالر ہے تقریباً روز بڑھ رہا ہے, تقریباً 169.60 تک انٹر بینک میں کام ہوا ہے, اور 69.25-30 کا جو اوپن مارکیٹ میں ریٹ چل رہا ہے. تو یہ اگر ڈالر بڑھتا ہے تو جو امپورٹ کوسٹ ہے اس سے بڑھ جاتی ہے, جس سے جو مہنگائی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. جو امپورٹڈ آئٹمس ہیں ان کی جو قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. ڈالر کی بڑھنے سے تو عام آدمی کو جو فرق پڑتا ہے وہ تو سب کو پتہ ہے کہ چیزیں وغیرہ مہنگی ہو جاتی ہے. بہرحال جو اسٹاک میں جو فرق پڑا ہے کہ ہماری جو مارکیٹ ایمیجنگ مارکیٹ میں جو $90 بلین کی تھی اب $40 بلین کی ہو گئی ہے, تو مارکیٹ کی ویلیو تقریباً 60% ڈاؤن ہو گئی ہے. جبکہ ماہرین کا کہنا ہے 20 تاریخ اسٹیٹ بینک کی جانب سے مانیٹرنگ پلان کیا جانا ہے. اس کے باعث بھی مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کی جانب سے محتاط انداز اپنایا جا رہا ہے. کیمرامین فرحان احمد کے ساتھ ایاز رانا, سٹی 21. اور سندھ حکومت نے کرونا کیسز میں نمایاں کمی کے بعد پابندیوں میں نرمی کر دی ہے. سندھ سرکار نے کراچی کے تاجروں کی سن لی, کرونا کیسز میں کمی پر پابندیوں میں نرمی کا اعلان کر دیا. محکمہ داخلہ سندھ کے نئے حکم نامے کے مطابق تجارتی مراکز رات 10 بجے تک کھلے رہیں گے. ہفتے میں صرف ایک دن کاروبار بند ہوگا. کراچی میں اتوار اور صوبے کے دیگر شہروں میں جمعے کو سیف ڈے ہوگا. تاجروں کا کہنا ہے کہ ہفتے میں ایک دن کاروبار بند رکھنے کا فیصلہ خوش آئند ہے. صوبائی وزیر ناصر شاہ صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے اس میں دلچسپی لی ذاتی اور اس مسئلے کو حل کرایا. اور اس کے علاوہ CM سندھ کا مراد علی شاہ صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری باتیں سنی اور ہمارے مسئلے حل کیے. نوٹیفیکیشن کے مطابق 200 مہمانوں کے ساتھ شادی کی انڈور تقریبات کی اجازت ہوگی. اوپن ایریا میں شادی بیاہ کی تقریبات میں 400 مہمان شریک ہو سکیں گے. انڈور ڈائننگ رات 12 بجے تک کھلی رہے گی. ویکسینیشن کارڈ لازمی ہوگا. ریسٹورینٹس میں 50% افراد کو بٹھانے کی اجازت ہوگی. تمام مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں. ڈائن آؤٹس ڈائن ان رات 12 بجے تک کھول دیے گئے. ویکسینیٹڈ پیپلز کے لیے ڈائن ان بھی کھول دیا گیا ہے. شادی والوں کے لیے بھی اچھی خبر ہے, پوری مارکیٹ کے لیے اچھی خبر ہے. تمام بزنس مینس کے لیے, کاروباری حضرات کے لیے جو بھی مارکیٹوں میں, اور کراچی والوں کے لیے خاص طور پہ حیدرآباد کے لیے بہت اچھی خبر ہے کہ ایز اٹ از وہی نوٹیفیکیشن جو لاسٹ ایک تھا جس پہ ایک ہمیں شکایت تھی, وہ نوٹیفیکیشن کی جگہ ایک اچھا نوٹیفیکیشن نکال دیا گیا ہے. آپ سب کو مبارک ہو. دفاتر میں 100% حاضری کے ساتھ تمام تفریحی پارک اور سوئمنگ پولز بھی 50% گنجائش کے ساتھ کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق مزارات مقامی انتظامیہ اور محکمہ اوقاف کی اجازت سے کھولے جا سکیں گے. جم SOPs کے تحت کھلیں گے. سینما اور انڈور گیم پر پابندی برقرار رہے گی. نئے حکم نامے کا اطلاق 16 ستمبر سے 30 ستمبر تک ہوگا. آزاد نوڈیو, سٹی 21. ٹرینوں پر سفر کرنے والے ہو جائیں ہوشیار, اب کرونا ویکسینیشن کے بغیر ٹرینوں پر سفر کرنے نہیں دیا جائے گا. دانیال سید کی رپورٹ. NCOC کی ہدایت پر پاکستان ریلوے کا ایکشن, کرونا ویکسین نہ کروانے والے ٹرینوں کا سفر بھی نہیں کر سکیں گے. ریلوے حکام کی جانب سے جاری کردہ حکم نامے کے مطابق ویکسین کی کم سے کم 1 ڈوز لگوانے والے مسافروں کو سفر کرنے کی اجازت ہوگی. مسافروں نے بھی ریلوے کے اس اقدام کو سراہا. بالکل ویکسینیشن پہلے کارڈ میں نے شو کروایا ان کو پہلے, ٹھیک ہے, پہلے شو کروانے کے بعد پھر انہوں نے مجھے آگے پروسیس کیا ہے, میرا ٹکٹ وغیرہ جو تھا. کارڈ مانگا کہ آپ کی ویکسین ہو گئی ہے, میں نے اس کو کہا یہ لو کارڈ, میرا ویکسین دونوں ہی پوری ہو گئی ہے میری, تو اس نے ٹکٹ میری فیملی کے لیے دے دیا.
जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन कार्ड हमारा जो मैंने शो किया उसके बाद टिकट हमारी ऑनलाइन बुकिंग हुई है और प्रॉपर तरीके से। रेलवे इंतजामिया का कहना है कि 15 अक्टूबर के बाद 2 डोज लगवाने वाले मुसाफिरों को ही सफ़र की इजाज़त होगी। कैमरामैन फैसल खान के साथ दानियाल सैयद, सिटी 21। यकसा कौमी निसाब को सिंध ने मानने से इनकार कर दिया। चीफ करिकुलम सिंध का कहना है कि पहली से 12वीं जमात तक के निसाब में तब्दीली लाई जा चुकी है। यकसा कौमी निसाब को सिंध ने मानने से इनकार कर दिया। चीफ एडवाइजर करिकुलम सिंध ने सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासत के बजाय निसाब में मुस्बत तब्दीलियां लानी चाहिए। पहली से 8वीं जमात तक निसाब में तब्दीली ला चुके हैं, जबकि 9वीं से 12वीं जमात तक निसाब पर काम मुकम्मल हो चुका है। पहले फेज में ग्रेड 1 to 5 पर किताबों पर और निसाब पर काम हुआ, फिर 6 to 8 पर हुआ, फिर 9 to 10 और 11 to 12। ग्रेड 8 तक हम पूरा ये जो हमारा एक प्रोसेस था वो ख़त्म हो चुका है। करिकुलम इस वक्त हमारा 12वीं जमात तक का करिकुलम हमारा तैयार है, जिस पर इस वक्त सिंटेक्स बुक बोर्ड किताबें जो है वो डेवलप कर रहा है, नई किताबें। चीफ एडवाइजर सिंध का मजीद कहना था कि निसाब में सिंध के हीरोज और तारीखी विरसों को भी शामिल किया गया है। लोकल कॉन्टेक्स्ट हमारे जो अपने सूबे सिंध के हीरो हैं उनको इसी तरीके से जो तारीखी विरसा है हमारा सिंध का उसको हमने रिफ्लेक्ट किया है। फौजिया खान ने बताया कि किताबों में सिंधी, उर्दू और इंग्लिश रीडिंग स्किल्स भी शामिल की हैं, जिससे तलबा की रीडिंग स्किल्स में इजाफा होगा। उमर शरीफ मुल्क का असासा हैं, उनके लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से रकम का भी ऐलान किया गया है। कॉमेडियन उमर शरीफ आगा खान अस्पताल में जेर इलाज। बैरून मुल्क इलाज के लिए सिंध सरकार की जानिब से मदद के ऐलान पर इनके साहबजादे जवाद उमर ने इजहार तशक्कुर किया है। आर्ट्स काउंसिल में जवाद उमर ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब, वजीर सकाफत सिंध सैयद सरदार अली शाह और सदर आर्ट काउंसिल अहमद शाह के हमरा मुश्तरका कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने आसानियाँ पैदा की। उन्होंने वालिद की बीमारी की तस्वीर वायरल न करने की अपील भी की। And I would like to thank the Sindh government जिन्होंने इतनी जल्दी ये सारा अरेंजमेंट किया। स्पेशली मुर्तज़ा वहाब साहब का शुक्रिया कि ये वहाँ पे तशरीफ़ लाए और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया था कि मैं आपका बड़ा भाई हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा जिस तरह से भी मैं इसको अरेंज कर सकूँ, उन्होंने करके दिखाया। सो आई एम रियली थैंकफुल टू सरदार अली शाह साहब, सिंध गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर सिंध, सारी जितने भी लोग अब्बू के वहाँ पे जिन्होंने विज़िट किया। मुर्तज़ा वहाब ने उमर शरीफ को मुल्क की असासा करार दिया। उनका कहना था कि जैसे ही लेजेंड अदाकार की बीमारी की इतला मिली तो वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, जिस शख्स ने हमें पूरी जिंदगी हंसाया उसे कैसे अकेला छोड़ सकते हैं। उमर शरीफ साहब इस मुल्क का असासा हैं और जैसे ही ये इत्तला वज़ीर आला सिंध को बिलावल भुट्टो जरदारी को मिली उमर शरीफ साहब की अदालत के हवाले से, जो अल्फाज हैं मैं वो आज दोहराना चाहूँगा और वो अल्फाज ये हैं कि जिस शख्स ने सारी ज़िंदगी हमें हंसाया हम कैसे उसे अकेला छोड़ सकते हैं। वजीर सकाफत सिंध सरदार अली शाह का कहना था कि सिंध हुकूमत ने हमेशा फनकारों को सपोर्ट किया। उमर शरीफ का कोई नेमो बदल नहीं, हमारी दुआ है कि वो सेहतमंद होकर लौटें और फिर से सबको हंसाएं। हमारी दुआ है कि अल्लाह उनको सेहतियाब करे और वो वाशिंगटन से वापस लौटे और यहाँ पे आके जो उनका फ़न ज़राफ़त है, जो उनका अपना एक अंदाज है, उससे फिर भी पूरी सोसाइटी को वो हंसाते रहे, क्योंकि हंसाने वाले बहुत कम होते हैं, रुलाने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। सदर आर्ट काउंसिल अहमद शाह का कहना था कि उमर शरीफ के इलाज के लिए सिंध हुकूमत के ताउन पर शुक्रगुजार हैं। इस मौके पर उमर शरीफ की सेहतयाबी के लिए दुआ भी की गई। कैमरामैन वाहिद खान के हमरा राहिल बेग, सिटी 21। उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रॉनिक्स के तलबा ने समुद्री आलूदगी की सफाई के लिए सीबिन नामी मशीन तैयार की है। समीन नवाज की रिपोर्ट। शहरकायद के तलबा का कारनामा, समंदरी आलूदगी की सफाई के लिए मशीन तैयार कर ली। उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तलबा ने मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा ऐसी मशीन तैयार की है जो न सिर्फ समंदर में जमा होने वाले कचरे को साफ करेगी बल्कि जहाज़ों और कश्तियों से बहने वाले तेल को फिल्टर करके इसे काबिले इस्तेमाल भी बनाएगी। ये बेसिकली इस पर्पज़ के लिए कि जैसे कि बाहरी ममालिक में डॉक यार्ड को साफ़ करने के लिए एक प्रॉपर मशीन होती हैं जो कि हमारे मुल्क में बेसिकली नहीं थी, तो हमने वहाँ से ही प्रपोजल देख के हमने ये मशीन तैयार की है जो बेसिकली हमारे डॉक यार्ड का जो भी गार्बेज
गार्बेज वगैरह होगी वो सॉर्टिंग करेगी, देन उसके बाद ही हमारा ऑयल सॉर्ट करेगी। ये जो मोटिवेशन मिली है हमें, बेसिकली यूएस बेस्ड एक प्रोजेक्ट है जो कि चाइना और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में इंस्टॉल हुआ हुआ है डॉकयार्ड्स के करीब। प्रोजेक्ट हेड इंजीनियर आरिफ ने कहा कि ऐसी काविशों को हुकूमती सपोर्ट की जरूरत होती है, लेकिन हमारे यहाँ हर साल ऐसे कई प्रोजेक्ट सरपरस्ती न होने के सबब डंप हो जाते हैं। ये प्रोजेक्ट जो है वो अमूमन 1 साल की होते हैं, लेकिन हमने इस पर तकरीबन 2 से 3 साल लगाए हैं और हमने लास्ट ईयर जो है इसको सिर्फ टेस्ट किया है स्विमिंग पूल के ऊपर। स्विमिंग पूल के ऊपर जो है पानी फ्लो नहीं होता है, पानी ठहरा रेस्ट को कंडीशन में होता है, तो वहाँ पर तो पानी ठहरा हुआ होता है, गार्बेज आता है, पानी साफ हो निकलता रहता है और इसके में चल रहा है ऑयल, हम साफ़ कर रहे हैं इसको। लेकिन ऐसी जगह पे जहाँ पर पानी फ्लो हो रहा है और उस जगह पर हम सिस्टम लगाते हैं तो उस पानी का जो प्रेशर आएगा हमें वो टेस्ट करना है। तो उस टेस्टिंग की अगर परमिशन मिल जाती है तो मुझे आई होप कि वो टेस्टिंग के बाद भी मुझे ज़्यादा चेंजिंग नहीं करना पड़ेगी। उस चेंजिंग के बाद ये मशीन बिल्कुल तैयार होगी, मैच्योर होगी कि इसको मैं पाकिस्तान नेवी के या मैरीन टाइम के मैं दे दूँ उनको। समंदर को आलूदगी से पाक करने का तहैया करने वाले उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तलबा ने मुल्क का पहला सीबन इंतहाई कम कीमत में तैयार किया है, जो आसानी इस्तेमाल किया जा सकता है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा समीन नवाज। ऑल पाकिस्तान डंपर्स एसोसिएशन ने सिंध भर में काम बंद करते हुए डंपर सोहराब गोट पर खड़े कर दिए हैं। तामीराती सेक्टर समेत अहम शोबाजात के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई है। सौलत जाफरी की रिपोर्ट। लोडिंग बंद, कचरा उठाने का काम बंद, सीमेंट सप्लाई भी मुअत्तल, डंपर्स मालिकान ने ट्रक खड़े कर दिए। सिंध डंपर ट्रक ओनर एसोसिएशन का कहना है कि सूबाई हुकूमत की जानिब से रॉयल्टी 8 से बढ़ाकर 40 रुपए फी टन करने के खिलाफ हड़ताल की जा रही है। 30 जून से जब रॉयल्टी बढ़ गया 40 रुपए पर टन हो गया, तो हमने सिंध गवर्नमेंट के माइन मिनिस्टर, सेक्रेटरी माइंस, हत्ता बिलावल भुट्टो जरदारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, यहाँ तक हमने अपनी दरख्वास्तें दी और अपने पैगाम पहुंचाया, लेकिन हुकूमत ने हमारी कोई सुनवाई नहीं दी। हमें इन्होंने हड़ताल पे मजबूर किए। हमारी आज 5वें दिन है, पुरअमन हड़ताल चल रही है कंस्ट्रक्शन मटेरियल और कराची के कचरों की, और अगर ये एक आध दिन मजीद चली तो उसके बाद बहालत मजबूरी हमें कराची के दाखिली और खारजी रास्ते बंद करने पड़ेंगे। डंपर्स मालिकान ने शहर में चलने वाले 11,000 डंपर्स खड़े कर दिए हैं और सुराब गोट पर एहतजाजी कैंप भी कायम कर दिया गया है। रेलवे की ट्रेड यूनियंस और एसोसिएशन पर मुश्तमिल ग्रैंड अलायंस ने कराची कैंट स्टेशन पर एहतजाज किया। इस हवाले से आपको आदिया नाज की रिपोर्ट दिखाते हैं। रेलवे की निजकारी आला मुराद पर प्राइवेट सेक्टर से मनमानी भर्तियां, पैसेंजर्स और गुड ट्रेनों की आउटसोर्सिंग, रेलवे अस्पतालों और स्कूलों की फरोख्त और मुलाजमीन की डाउन साइजिंग के खिलाफ रेलवे मुलाजमीन सिरापा एहतजाज। रेलवे की ट्रेड यूनियंस पर मुश्तमिल ग्रैंड अलायंस ने मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान रेलवे के जो असल रूह है उसको बहाल करो। अगर आपको थोड़ी भी शर्म है, अगर आपको थोड़ी भी तड़प है। कराची कैंट स्टेशन पर एहतजाज में मुलाजिमीन का कहना था कि आउटसोर्सिंग के पुराने और नाकाम तजर्बे को एक बार फिर दोहराया जा रहा है। मौजूदा हुकूमत नॉन रेलवे स्टाफ को भारी मुआवजों के एवज भर्ती कर रही है। ठेकेदारी निजाम से कौमी इदारे को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचेगा। इस वक्त रेलवे में 30,000 लोग शार्ट हैं और सारा काम का दबाव जो है 65,000 लोगों पे आ गया है, तो उसकी वजह से रेलवे का मजदूर एक नफसियाती मरीज़ बन गया है काम के दबाव में, और कोई मटेरियल नहीं है जिससे हम बोगियां ठीक कर सकें, लाइनें ठीक कर सकें, इंजन ठीक कर सकें। प्राइवेटाइज क्या है? ये ठेकेदारी है। ठेकेदारी का मकसद ये होता है कि सीधा सीधा अपने लोगों को नवाजना और करप्शन करना। ठेकेदार का तस्वर यही है, ठीक है ना, कमीशनें मांगना। और दूसरी बात यह है कि ख़ास तौर पे जो बड़ी चीज़ हमारे सामने आई है, जो चौंका देने वाली है, जो इस आवाम के लिए, इस मुल्क के लिए और हम मजदूरों के लिए, वो ये है कि जो चीज़ हम 80% जिससे कमा रहे थे वो इन्होंने 60% में बेच दी। जिससे हम 100% कमा रहे थे वो इन्होंने 70% में बेच दी। मुलाजिमीन का कहना था कि इदारे की तनज़्ज़ुली का बहाना बनाकर इससे सस्ते दामों मनपसंद सरमायादारों के हवाले किया जा रहा है, जो किसी सूरत कबूल नहीं। रेलवे में इस वक्त 30,000 मुलाजिमीन की कमी है और डब्बों की फिटनेस के लिए दरकार मटीरियल नहीं दिया जाता। अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर न किया गया तो मुल्क घिर एहतजाज पर मजबूर होंगे। कैमरामैन इमरान इब्राहिम के साथ आदिया नाज, सिटी 21। FBI रीजनल टैक्स ऑफिस 1 कराची ने कार्रवाई की है। इसी पर सलाल वड़ाइच की रिपोर्ट देखिए।
किजरी में FBI रीजनल टैक्स ऑफिस 1 कराची का एक्शन, पॉइंट ऑफ सील इंटरोगेशन सिस्टम में शामिल न होने पर शोरूम सील कर दिया। RTO के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि दुकानदारों को मुतअद्दिद नोटिस दिए गए, गुज़िश्ता रोज वार्निंग भी जारी की गई। उनका कहना था कि दुकानदार सार्फिन से टैक्स की मद में रकम वसूल करते हैं लेकिन हुकूमती खजाने में जमा नहीं कराते। अच्छा, इसमें आपको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताता जाऊँ कि पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन का जो मकसद है वो ये है कि जी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 80 बिलियन रुपीज़ जो है वो जो रिटेलर्स हैं वो लोगों से लेते हैं लेकिन FBI के ख़जाने में वो जमा नहीं होता। तो हमारा ये जो प्रोग्राम है वो बेसिकली उसी सिलसिले की कड़ी है कि हम चाहते हैं कि वो पैसा जो रिटेलर एक आम कस्टमर से लेता है FBI की मद में, लेकिन वो FBI के ख़जाने में जमा नहीं होता बल्कि वो किसी और के ख़जाने में जाता है, किसी और की जेब में जाता है। तो वो जो मेल प्रैक्टिसेस हैं उनको ख़त्म करने के लिए ये बेसिकली सिस्टम लॉन्च किया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि टैक्स नेट में शामिल होने से कौम का फ़ायदा है। पॉइंट ऑफ सील इंटरोगेशन सिस्टम में शामिल होने से कारोबारी हज़रात किसी भी किस्म की कार्रवाई से बच सकेंगे। कैमरामैन मुताहिर के हमरा, सलाल वड़ाइच, सिटी 20। सिंध सरकार ने वफाकी सरकार की जानिब से सस्ते तवानाई के मनसूबे ख़त्म करके महंगे मनसूबे शुरू करने की मंजूरी देने पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। आज़ाद नेहरियो की रिपोर्ट। तवानाई मंसूबों पर सिंध सरकार और वफाकी हुकूमत में एक बार फिर ठन गई। सूबाई वजीर तवानाई इम्तियाज शेख ने सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक खत वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर को और चेयरमैन नेपरा को अरसाल कर दिया। खत में लिखा है IGCEP 2021 से 2030 के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात है। मंसूबों में सस्ती बिजली के बजाय महंगे प्रोजेक्ट को शामिल किया गया। खत में ये लिखा गया कि 50 से 60 मिलियन लोगों तक बिजली पहुंच ही नहीं पाती। ऐसी सूरत हाल में महंगी बिजली के मंसूबे लाना समझ से बालातर है। खत में इल्जाम लगाया गया कि 400 मेगावाट शमसी तवानाई वाले सस्ते मंसूबे को मंजूर न करना भी ना इंसाफी है। उन्होंने वफाक से सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की अपील की। आज़ाद नोडियो, सिटी 21। खुसरो बख्तियार ने के इलेक्ट्रिक बिन कासिम पावर स्टेशन 3 का दौरा किया है और के इलेक्ट्रिक हुकाम ने वफाकी वजीर को ब्रीफिंग भी दी है। हबीब खान की रिपोर्ट। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार का बिन कासिम पावर प्लांट 3 का दौरा। के इलेक्ट्रिक इंतजामिया ने बिन कासिम पावर स्टेशन BQPS 3 पर 900 मेगावाट के RLNG प्रोजेक्ट से मुतालिक ब्रीफिंग दी। खुसरो बख्तियार ने के इलेक्ट्रिक की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि ये मंसूबा कराची के अवाम और सनतों के लिए तोहफा है। वजीर आजम जल्द प्लांट का इफ्तिताह करेंगे। It's indeed a pleasure and a very heartening news to hear in terms of the progress of under construction 450 megawatt power plant, and I'm very hopeful that, as you have said, that it will probably go into production by November. That augurs as a very good news for inhabitants of Karachi. CEO के इलेक्ट्रिक मोने सल्वी का कहना था कि कराची की तरक्की के लिए महफूज और मुस्तकिल तवानाई की फराहमी बहुत जरूरी है। के इलेक्ट्रिक ने 900 मेगावाट की बिजली पैदा करने की सलाहियत वाला मंसूबा $650 मिलियन की लागत से तामीर किया है। हबीब खान, सिटी 21। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की जानिब से महकमा तालीम में फर्नीचर खरीदारी की मद में 3.5 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया है। सूबाई वज़रा सईद गनी और सैयद सरदार शाह का हलीम आदिल शेख को स्कूल फर्नीचर की खरीदारी में करप्शन के इल्जाम पर करारा जवाब। धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जामात मुस्तरद करते हुए शवाहिद मांग लिए। सईद गनी का कहना था कि डेस्कों की खरीदारी का पूरा प्रोसेस आज़ाद और खुद मुख्तार सेंट्रल प्रोक्यूरमेंट कंपनी ने अंजाम दिया, जिसमें किसी वजीर ने कोई मुदाखलत नहीं की। कमेटी ने मुख्तलिफ इदारों को खत लिख कर निगरानी के लिए नुमाइंदों के लिए नामजदगी तलब की थी। ये नैब को भी कहा, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को भी कहा, ये एंटी करप्शन को भी कहा और ये हाई कोर्ट को भी कहा कि आप अपना एक एक नुमाइंदा नामजद कर दें जो इस पूरे अमल को कि जी 14 अप्रैल को क्या होना है, फिर 15 को क्या होना है, फिर फलां डेट को क्या होना है, तो जो जो स्टेजेस इसकी मुख्तलिफ हैं वो आकर इसको मॉनिटर करें और इसको देखें अगर उनका कोई भी मौका। सईद गनी ने तंज के तीर बरसाते हुए कहा कि अपोजिशन लीडर बाजार चले गए, फर्नीचर खरीद लाए, ट्रांसपोर्टेशन और टैक्सी की अदायगी भी तो होनी है। 3 अरब 60 करोड़ के स्कूल फर्नीचर पर भी 1 अरब रुपए की रकम टैक्सेस और ट्रांसपोर्ट की मद में मुताल्लिका बिडर अदा करेगा। 1 अरब रुपए ट्रांसपोर्टेशन और टैक्स की मद में इस 3.6 अरब से निकल जाते हैं, बाकी बच जाते हैं 2.6 अरब रुपये। अब 2.6 अरब रुपए में
1,44,000 बेंचेस भी उन्होंने देनी है। अब अगर 1,44,000 बेंचेस भी दे दें, 1 अरब रुपए ये भी निकल जाए, तो 3 अरब रुपए का टीका किसने हिसाब निकाला, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह ने अपोजिशन लीडर को तालीम हासिल करने का मशवरा दिया ताकि कुछ सीख जाएं। बोले इन्हें मामले का इल्म नहीं था। सईद गनी ने इबाहम दूर कर दिया। इसका प्रोसेस क्या था, मुझे कोई पता नहीं था कि पूरा प्रोसेस किस तरह हुआ है। तो सईद गनी साहब ने कहा कि मैं इस पूरे प्रोसेस को खुद बैठ के बताऊंगा सबको कि हमने ये पूरा जो अमल है वो किस अंदाज में किया है, सबको ऑन बोर्ड लिया था, सबको लेटर्स भी लिखे, सब कुछ किया, वो आपने सबने सुना यहाँ पे। अब मैं फ़कत इतना कहना चाहता हूँ कि ये पूरा प्रोसेस, ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सईद गनी साहब के सामने हैं, हम इसको बैठ के रिव्यू करेंगे। वजीर तालीम सूबाई वज़रा ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के खत में किसी बेकायदगी का जिक्र न होने का भी दावा किया और कहा कि खत में प्रोक्यूरमेंट कंपनी पर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं उठाया गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली ने मुलाकात की है। कैप्टन रिटायर्ड जमील, फ़हीम खान, अताउल्लाह और आफ्ताब जहांगीर मुलाकात करने वालों में शामिल थे। हल्कों के मसाइल समेत कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में हारने वाली नशिस्तों के हवाले से भी बात की गई। 18 ग्रेड के साथ डिप्टी सेक्रेटरीज को 19 ग्रेड में तरक्कियां देकर एडिशनल सेक्रेटरी बना दिया गया। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 की मंजूरी के बाद महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन अफसरान को तरक्कियां मिली हैं उनमें अनीस अहमद दस्ती, सैयद मोहम्मद अली शाह, जुल्फ़िकार अली खुश्क, मुश्ताक अहमद शेख, जुनेद अहमद सम्मू, अब्दुल वाजिद शेख और जुनेद अहमद राजपूत शामिल हैं। सहावती तंजीमों ने मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ये कहते हैं कि PMDA पर तजावीज़ मंजूर हो गई तो ठीक है, वरना तब्दील कर देंगे। वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब बोले कि पाकिस्तान में फ़ेक न्यूज़ की रिवायत पड़ गई है, कोई ऑर्डिनेंस नहीं आ रहा। कौमी असम्बली की ज़ेली कायमा कमेटी बराए इत्तलात और सेनेट की कायमा कमेटी के अलग अलग इजलास हुए। और सरबराह निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी हाजी हनीफ तैयब ने हुकूमत की डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल पर तशवीश का इजहार किया है। जुनेद फेरोज़ की रिपोर्ट। पार्टी ने वफाकी हुकूमत के PMDA के बिल की मुखालफत कर दी। निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी में मुनक्किद इजलास से खिताब में हाजी हनीफ तैयब ने कहा कि हुकूमत के पाकिस्तान डेवलपमेंट मीडिया अथॉरिटी के तहत मीडिया की आज़ादी गस्ब करने की साजिश किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। मीडिया की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर एहतजाज करेंगे। आज निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पर हुकूमत दिन दहाड़े सहाफ़ियों की और अखबारात के मालिकान की आंखों में धूल झोंक रही है। सरबराह निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी ने कहा कि गैर मुस्लिम का इस्लाम कबूल करने पर एतराज़ात कबूल नहीं। हुकूमत बिल को फौरी वापस ले, वरना हर फॉर्म पे एहतजाज किया जाएगा। कोई हिंदू ईसाई हो जाए तो एतराज़ नहीं है, एतराज़ सिर्फ इस पर है कि हिंदू मुसलमान क्यों हुआ। उसके लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ जुमे से हमारे तमाम मसाजिद के ज़रिए से एक तहरीक मजम्मत की जाएगी। पार्टी इजलास में अल्लामा अबरार रहमानी, अल्लामा नसीम अहमद सिद्दीकी, प्रोफेसर अब्दुल जब्बार कुरैशी, काजी अहमद मुजाहिद, काजी शब्बीर, अब्दुल कदीर शरीफ भी मौजूद थे। शुरा ने हुकूमत की जानिब से मदीना की रियासत के नाम पर आवाम को बेवकूफ़ बनाकर इस्लाम के मुनाफी इक़दामात की मजम्मत की और मीडिया को हर एहतजाजी प्लेटफॉर्म पर अपने ताउन का यकीन दिलाया। कैमरा मैन हसनैन जाफरी के साथ जुनेद फिरोज, सिटी 21।